wonderful greetings to all of you, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. How are you all today? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बेटे बेटियां, आप सबके लिए अद्भुत शुभकामनाएं। और आप सब आज कैसे हैं? I trust all of you are doing good with these studies on the order of the Melchizedek. मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे हैं और इस शिक्षाएं जो मेल्कीजेदेक की रीति पर वो आपके लाभदायक है। We have come a long way in these studies. इस शिक्षा के बड़े लंबे सफर में हम आए हैं। Almost 1 year. तकरीबन 1 साल हो गया। So now we have come to the end of these studies. अब जो है हम इस शिक्षाओं के अंत में आ पहुंचे हैं। Firstly, King David set up a company, a large group of musicians and singers who will worship God day and night. सबसे पहले दाऊद राजा ने एक ऐसा झुंड, ऐसे लोगों को तैयार किया जो संगीतकारों का है, जो दिन रात लगातार परमेश्वर की आराधना और गीत गाते रहेंगे। This group of musicians and singers set up by King David worshipped God day and night. दाऊद राजा ने इन संगीतकारों को, गीतकारों को नियुक्त किया कि दिन रात परमेश्वर की आराधना का गीत गाते रहें। So this is the pattern. और यही वो प्रतिरूप है। The incense should rise up continuously before the presence of God. ये सुगंधित धूप परमेश्वर की उपस्थिति के लिए लगातार उठता रहना जरूरी है। So incense is sacrifice. और ये सुगंधित धूप जो है बलिदान है। So what kind of sacrifices? किस प्रकार के बलिदान? Praise and thanksgiving. स्तुति करना और धन्यवाद देना। Secondly, King David set up a company of singers. दूसरा, दाऊद राजा ने गीतकारों की झुंड को नियुक्त किया। These singers were all well-trained singers. और ये गीतकार बहुत ही प्रशिक्षित एक गीतकार लोग हैं। There were also psalmists. वहाँ पर भजनगार लोग भी थे। Now who are the psalmists? भजनगार लोग कौन हैं? They wrote songs. जिन्होंने गीतों को लिखा है। They received inspiration from the Holy Spirit and they began to write songs from heaven. वे पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर और स्वर्ग से उन गीतों को पाकर उन्हें लिखा है। The second group set up by King David were the musicians. दूसरा झुंड जो दाऊद राजा के द्वारा नियुक्त किया गया है वो संगीतकार लोग हैं। There were musicians who were very good in beating the cymbals. वे ऐसे संगीतकार लोग थे जो बहुत ही अच्छी तरीके से पीतल की झांझों को बजा सकते थे। There were people who were very good in playing the harp. बहुत ही सुंदर वाणी बजाने लोग भी थे। There were people who know how to play the trumpet so well. वहाँ पे तुरही बहुत ही अच्छे बजाने वाले लोग भी थे। So during the times of King David, there were just these 3 kinds of instruments. दाऊद राजा के समय पर सिर्फ ये 3 प्रकार के साज यंत्र था। Now they all worship God with their voices and with their musical instruments. वे सब अपने आवाजों से और अपने संगीत की साजों से परमेश्वर की आराधना करते हैं। And besides that, the ministers and the worshippers in the tabernacle of David worship God exuberantly with all their body. इतना ही नहीं, इसके अलावा दाऊद के द्वारा लगी गई उस मिलाप वाली तंबू में सेवा करने वाले सेवक लोग और भी अन्य लोग बहुत ही उत्साहपूर्वक परमेश्वर की आराधना करते थे। So in the previous study, we studied about the re-establishment of the tabernacle of David in the last days. पिछले अध्ययन में हमने अध्ययन किया था कि इन अंतिम दिनों में दाऊद राजा की मिलाप वाली तंबू को फिर से स्थापित किया जाएगा। But today I show you a mystery. मगर आज एक रहस्य मैं आपको दिखाता हूँ। The Bible tells us very clearly that God will re-establish on a grander scale the tabernacle of David. परमेश्वर फिर से दाऊद राजा के मिलाप वाली तंबू को और ऊंचे स्तर तक वो स्थापित करने वाले हैं। But there is a question here. मगर एक सवाल है यहाँ पर। I wonder whether you thought of that. मुझे पता नहीं कि आपने कभी ऐसे सोचा है। Will the tabernacle of David be a physical building or is it more spiritual? क्या दाऊद राजा की वो मिलाप वाली तंबू वो भौतिक या शारीरिक होगा या वो आत्मिक होगा? What do you think? आप क्या सोचते? I'll give you a clue. आपके लिए एक संकेत देता हूँ। The Bible does tell us from the book of Ezekiel that there will be a temple
during the millennium. बाइबल जरूर हमें बताता है एजेकियल के पुस्तक के द्वारा कि 1000 साल के राज्य में एक मंदिर जरूर होगा। So, knowing what we know so far about the tabernacle of David, अब तक जो जानकारी हमें मिली है जो दाऊद राजा की मिलाप वाली तंबू के विषय में, how will it be like in the last days? वो अंतिम दिनों में वो कैसा होगा। You know, there was a significant change in the pattern of worship from the tabernacle of Moses to the tabernacle of David. अब जानते हैं मूसा का मिलाप वाले तंबू से लेकर दाऊद राजा के मिलाप वाले तंबू के बीच में आराधना का एक महत्वपूर्ण ढांचा बदलाव हुआ है। In the tabernacle of Moses, the great importance is given to offering of sacrifices. मूसा के मिलाप वाले तंबू में महत्वपूर्ण भाग बलिदानों के लिए दिया गया है। But in the tabernacle of David, the greater importance is given to worship. मगर दाऊद राजा के मिलाप वाले तंबू में महत्वपूर्ण भाग आराधना के लिए दिया गया है। That is why you'll read in the book of First Chronicles how King David established 24 orders of Levitical priests who will just sing unto God. और इस वजह से पहले इतिहास की पुस्तक में हम देख सकते हैं कैसे राजा दाऊद ने 24 प्रकार के लेवियों को नियुक्त किया है कि लगातार वे आराधना करते रहें। And the Bible tells us in the book of Isaiah that God created us to offer him praises. बाइबल ये बताता है यशायाह की भविष्यवाणी की पुस्तक में परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है कि उसकी हम प्रशंसा करें, उसकी स्तुति करें। Now by now you should be getting some idea what the tabernacle of David will be like in the last days. अब तक आपको एक विचार मिल गया होगा कि अंतिम दिनों की दाऊद राजा के मिलाप वाली तंबू किस प्रकार का होगा। So now I show you the mystery. अब मैं आपके लिए वो रहस्य बताता हूँ। Let's read 2 Corinthians chapter 6 verse 16. आइए जो दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 16 पद को हम पढ़ें। And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God and they shall be my people. मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। Now please look at this scripture again. इस वचन को फिर से देखिए। Firstly, it says, you are the temple of God. दूसरा ये कहता है कि आप ही परमेश्वर के मंदिर हैं। Secondly, God says, I will dwell in them. और दूसरा परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनमें वास करूंगा। So we are the temple of God. तो हम परमेश्वर के मंदिर हैं। Our body is the temple of the living God. हमारा शरीर जीवित परमेश्वर का मंदिर है। And God dwells inside us. हमारे अंदर परमेश्वर वास करते हैं। Now, if you put all the 3 points we said earlier together, what do you get? और जो सारे 3 बिंदुओं जो पहले हमें मिला था उसे एक साथ अब लगा के अगर देखें, Our body is the temple of the living God. हमारा शरीर जीवित परमेश्वर का मंदिर है। God dwells inside us. परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं। And God created us to praise and worship Him. परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया ताकि उसकी हम स्तुति करें, आराधना करें। So 1 plus 1 plus 1 equals to the tabernacle of David is within you. 1 जोड़ 1, 1 जोड़ 1 उसके तुल्य दाऊद राजा का तंबू आपके बीच में, आपके अंदर वास करता है। The glory of God is within you. परमेश्वर की महिमा आपके अंदर है। You know, when King David established the tabernacle on Mount Zion, it was a pattern of heaven. जब दाऊद राजा ने वो तंबू को सियोन पर्वत के ऊपर बसाया तो वो स्वर्ग का एक प्रतिरूप था। And you read this very beautifully in 1 Chronicles chapter 16 verse 1. और इसे पहला इतिहास उसके 16 अध्याय के पहले पद में सुंदर रीति से पढ़ सकते हैं। So it brought a change in worship from the tabernacle of Moses up to the tabernacle of David. इसलिए दाऊद राजा के मिलाप वाली तंबू से और मूसा के मिलाप वाली तंबू के बीच में आराधना का एक बड़े बदलाव आया है। From the pattern of offering sacrifices, it has now changed to the pattern of offering
worship. बलिदानों के प्रतिरूप जो चढ़ाने का था उसमें से अभी आराधना के प्रतिरूप में बदल गया है। First Chronicles chapter 16 verses 4 to 6 tells us that. पहला इतिहास उसके 16 अध्याय के 4 से लेके 6 पद इस बात को बताता है। So the first duty of the order of the Melchizedek priesthood in the tabernacle of David is to offer worship and praise to God. इसलिए पहला कर्तव्य मिल्कीजेदेक की रीति पर के याजकों का उन अंतिम 1000 साल के राज्य में दाऊद राजा के मिलाप वाले तंबू में कि वो आराधना को क्रम में ले आए, सिखाएं। And the second responsibility is to inquire in his holy temple. दूसरी जिम्मेदारी ये है उनके पवित्र भवन से पूछताछ किया करें। First Chronicles chapter 17 verse 16 tells us that's what the priests did in the tabernacle of David. पहला इतिहास उसके 17 अध्याय के 16 पद तक यही देखते हैं कि याजक लोग दाऊद राजा के मिलाप वाले तंबू में वही किया करते हैं। You will find this activity in heaven written or mentioned in the book of Revelation. इस प्रकार के कार्य को लिखा हुआ और कहा गया प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में। In Revelation chapter 8 and chapter 15, you will read of activities that take place in the temple in heaven where angels are involved. प्रकाशित वाक्य उसके 8 और 15वें अध्याय में हम देख सकते हैं स्वर्ग के उस मंदिर में इस प्रकार के कार्य को होता हुआ। And they are seen lightnings and thunders. और वे बिजली चमकता हुआ और गरजता हुआ उन्होंने देखा है। So that signifies some kind of communication, some kind of inquiries are all going on inside the temple. और इसके मतलब मंदिर के अंदर किसी न किसी प्रकार के वार्तालाप और पूछताछ हुआ जा रहा है। And then when the angels come out from the temple, they give the bowls of the wrath of God to the 7 angels to pour out on the earth. और जब ये स्वर्गदूत मंदिर से बाहर आते हैं, संसार के उस 7 दूतों को देते उन कटोरों को या परमेश्वर के प्रकोप को संसार में उंडेलने के लिए। All throughout the book of Revelation, you will find these two activities. संपूर्ण प्रकाशित वाक्य पुस्तक में इन 2 कार्य को होता हुआ देख सकते हैं। On the one side, worship goes on in heaven. एक तरफ में स्वर्ग में आराधना होता रहता है। On the other side, inquiry, instructions, commands are taking place in heaven. दूसरी तरफ स्वर्ग में पूछताछ किया जा रहा है, मार्गदर्शन लिया जा रहा है और आदेश दिया जा रहा है। Shall we look at it from the scriptures? क्या इसे हम वचनों में से देखें? Revelation chapter 4 verses 8 to 9 says, the beings in heaven offer exuberant worship to God. प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के 8 और 9 पद में देखते हैं वहां के जीव परमेश्वर की आराधना उत्साह पूर्वक करते आ रहे हैं। Revelation chapter 4 verses 10 to 11 says, the 24 elders offer exuberant worship to God. प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के 10 से लेकर 11 पद कहता है वहां के 24 प्राचीन लोग उत्साह पूर्वक आराधना कर रहे हैं स्वर्ग में। Revelation chapter 5 verses 11 to 12 tells us a multitude of angels, they offer their worship unto the living God. प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के 11 से लेकर 12 पद कहता है कि स्वर्गदूत के झुंड वहां पर बहुत ही सामर्थ्य आराधना प्रभु के लिए भेंट चढ़ाते जा रहे हैं। And Revelation chapter 7 verses 9 to 10 tells us all the redeemed saints in heaven offer great heartfelt worship to God. प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय के 9 से 10 पद ये कहता है वहां के सारे संत लोग अपने पूर्ण हृदय से परमेश्वर के लिए आराधना का भेंट चढ़ाते जा रहे हैं। That is the first pattern. यही पहला ढांचा है। Now let's look at the second pattern. अब हम दूसरा ढांचा देखेंगे That is making inquiry. और वो पूछताछ करना। In Zechariah chapter 1 verses 12 to 13 we read about a group of angels that make inquiries unto God. जकरिया उसके पहला अध्याय के 12 से 13 पद देखते हैं स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। And in Isaiah chapter 6 verses 1 to 8 and Revelation chapter 5 verses 2 to 5 we read about the saints of God and the angels and the elders in heaven. They are all involved in a discussion and making inquiries to God. यशायाह भविष्यवाणी की पुस्तक के 6 अध्याय के 1 से लेकर 8 पद
और प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय के 5 से 8 पद में देखते हैं कि स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर के संत लोग और सब मिलकर बातचीत कर रहे हैं और परमेश्वर से पूछताछ किए जा रहे हैं। These are the two most important activities for the priests in the order of the Melchizedek. मिल्कीजेदेक की रीति पर के याजक लोगों के लिए महत्वपूर्ण 2 प्रकार के कार्य यही है। Amen. आमीन। So please meditate on this इसलिए इस पर आप अध्ययन करें and we'll meet again next week. और अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे। God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049,